مارننگ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں بھاری جرمانوں سے تنگ عوام کے لیے نئی مشکل۔ ٹریفک وارڈنز کو نیا ٹارگٹ مل گیا، ہر وارڈن روزانہ 20 سے 25 چالان کرے گا۔ ٹریفک وارڈنز کو چالان کا کوٹا پورا کرنے کا حکم جاری، معمولی غلطی پر بھی بھاری جرمانے ہوں گے، غریب شہری کہاں جائیں؟ شہری ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے گریز کریں۔ مقدمات کے بعد لاہوریوں کے لیے بھاری ٹریفک چالان کا طوفان آئے گا۔ وارڈنز کو زیادہ سے زیادہ چالان کرنے کا ٹارگٹ مل گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈیوٹی پر موجود ٹریفک وارڈنز کو زیادہ سے زیادہ چالان کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ مقدمات کا اندراج انتہائی صورتحال میں کیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس ذرائع کے مطابق ہر وارڈن کو روزانہ 20 سے 25 چالان کرنا ہوں گے۔ افسران کو ہدایت کی گئی کہ تمام توانائی اور فوکس نئے قوانین کے تحت چالان ٹکٹس جاری کرنے پر رکھیں۔ زیادہ چالان سے وارڈنز کی کارکردگی بہتر ہونے کے ساتھ شہری بھی ٹریفک قوانین پر عمل کریں گے۔ لاہور میں ایک بار پھر ون ڈش نافذ، بلند آواز سے میوزک چلانے پر پابندی عائد۔ فارم ہاؤسز اور گراؤنڈز میں حکومتی شکنجے میں آئیں گے۔ ون ڈش قانون توڑنے پر بھاری جرمانے اور قانونی کارروائی کا حکم جاری۔ قانون کے لیے سب برابر، کوئی معافی نہیں، وزیر اعلیٰ نے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ٹاسک دے دیا۔ شہری ہوشیار، خبردار، شادی کی تقریب میں ایک سے زیادہ ڈش نہ بنوائیں، اونچی آواز میں میوزک نہ لگائیں، لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال سے گریز کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شادی کی تقریب میں ون ڈش کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا ہے۔ شادیوں تقریبات میں بلند آہنگ میوزک چلانے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ قوالی نائٹ اور دیگر تقریبات میں بھی لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شادی ہالز کی طرح فارم ہاؤس اور گراؤنڈز میں بھی لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر پابندی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو میرج ہالز کے لیے مقررہ اوقات کار کی پابندی کی مانیٹرنگ کی ہدایت جاری کی ہے۔ جرم کی جڑ پر ضرب لگانے کا فیصلہ، پنجاب میں ڈر نہیں، امن کا مشن۔ غیر قانونی اسلحہ ڈیلرز اور سپلائرز کے گرد گھیرا تنگ، اسلحہ کی ملکیت ظاہر کرو یا جیل جاؤ۔ حکومت کا نیا ڈرافٹ فائنل، بھاری جرمانے، کڑی سزائیں تجویز۔ حکومت نے 15 دن کی مہلت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ عام شہریوں کو بھی غیر قانونی اسلحہ واپس کرنے کے لیے ایک اور چانس مل گیا۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے قانون کے شکنجے میں لائے جائیں گے، سخت سزائیں اور بھاری جرمانے ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے صوبے کو اسلحہ سے پاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ پنجاب سرنڈر آف ایلیسٹ آرمز ایکٹ 2025 کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا۔ مجوزہ قانون کے مطابق حکومت 15 روز کی عمومی مہلت دے دی گئی۔ 15 دن کے دوران شہری بلا خوف اپنا غیر قانونی اسلحہ تھانے یا CCD کے پاس جمع کروا سکیں گے۔ اس مدت میں اسلحہ جمع کروانے والوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ جمع شدہ ہتھیاروں کی باقاعدہ رسید جاری کی جائے گی اور ہر اسلحہ کا ڈیجیٹل ریکارڈ رکھا جائے گا۔ قانون میں یہ بھی شامل ہے کہ مہلت ختم ہونے کے بعد غیر قانونی اسلحہ نہ جمع کروانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، جبکہ لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے والوں کو بھی مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ٹیکس نہ دہندگان، سنگین مقدمات میں ملوث افراد اور ہتھیار رکھنے کا جواز ثابت نہ کرنے والوں کے لائسنس منسوخ کیے جا سکیں گے۔ محکمہ بلدیات 52 شہروں میں سیوریج بچھائے گا، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 10 ارب جاری۔ اسکولوں میں بنیادی سہولیات کو پورا کرنے کا مشن، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 20 ارب کے فنڈز جاری کر دیے۔ فرنیچر اور ٹیک لیبز بنانے کے لیے مزید 9 ارب کی منظوری۔ پنجاب کے 52 شہروں میں سیوریج پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 10 ارب روپے جاری کر دیے۔ محکمہ بلدیات نے اس پروگرام کے لیے 50 ارب روپے کا بجٹ بنا رکھا ہے۔ محکمہ خزانہ نے پہلی قسط کے طور پر 10 ارب روپے جاری کیے ہیں، باقی فنڈز مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں میں بنیادی سہولیات کو پورا کرنے کے لیے 20 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ فنڈز ایڈیشنل کلاس رومز، سائنس لیبز، چار دیواری اور بنیادی سہولیات پورا کرنے پر خرچ ہوں گے۔ سیکرٹری ایجوکیشن خالد نذیر بٹو کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے فرنیچر اور ٹیک لیبز بنانے کے لیے مزید 9 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ محکمہ لیبر پنجاب نے 720 رجسٹرڈ ورکرز کو مفت فلیٹس دینے کا پروگرام تیار کر لیا ہے۔ محکمہ لیبر نے اسمبلی منظوری کے لیے کابینہ کو ارسال کر دی ہے۔ محکمہ لیبر نے سندر انڈسٹریل اسٹریٹ میں 4 ارب روپے کی لاگت سے 720 فلیٹس تعمیر کیے ہیں۔ شفاف قرعہ اندازی کے ذریعے یہ فلیٹس رجسٹرڈ ورکرز کو مفت فراہم کیے جائیں گے۔ لاہور میں دھیرانی پروگرام کے تحت 150 جوڑوں کے شادیاں کروائی جائیں گی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر نے اجتماعی شادیوں کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ محکمہ خزانہ دوسرے مرحلے کے لیے پہلے ہی 85 کروڑ روپے جاری کر چکا ہے۔ دوسرے مرحلے میں قصور، پاک پتن، بہاول نگر، رحیم یار خان میں شادیاں ہوں گی۔ نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازہ میں اہم پیشرفت، پارکنگ پلازہ کی 452 میں سے 412 پائلیں مکمل۔ ٹیپا نے زیر زمین پلازے کی تعمیر کے لیے 20% کھدائی مکمل کر لی۔ ٹیپا نے 71 میں سے 68 دکانیں مسمار کر کے نیلا گنبد کے فساد کو کلیئر کر دیا۔ نیلا گنبد میں زیر زمین پارکنگ پلازہ تیاری کے مراحل میں، پارکنگ پلازہ کے 452 میں سے 412 پائلیں مکمل کر لی گئیں۔ ٹیپا نے زیر زمین پلازے کی تعمیر کے لیے 20% کھدائی کا عمل بھی مکمل کر لیا ہے۔
382 मीटर की कैप बीम में 182 मीटर कैप बीम मुकम्मल कर ली गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद असद का कहना है कि मंसूबा ऑन टाइम है। मंसूबे में हाइल रुकावटें दूर कर दी गई हैं। 452 फाइल्स में से हमने 412 फाइलें कंप्लीट कर दी है, जो तकरीबन 90% काम कंप्लीट हो गया। और जो हमारा कैप टीम है वो भी 40% हो चुका है। एक तो स्ट्रेटजी ये थी कि हम टोटल फाइलें कंप्लीट करें, उसके बाद एक्सपेंशन स्टार्ट करें, लेकिन अभी हम टाइम सेविंग के लिए हमने ये किया है कि जिन जगहों पे फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं, कैप बीम कंप्लीट हो गया है, उसकी हमने पैरेलल एक्सपेंशन भी स्टार्ट कर दी है। फाइल सपोर्ट सिस्टम की तामीर का काम जारी है, जबकि सर्विसेज की 100% मुंतकली मुकम्मल कर ली गई है। टीपा ने 71 में से 68 दुकानें मस्मार करके नीला गुंबद के फिसाड को क्लियर कर दिया है। गरीब की मुर्गी फिर आसमान को छू गई। मुर्गी का गोश्त एक रोज में 29 रुपए किलो महंगा। मार्केट में गोश्त की नई कीमत 482 रुपए किलो हो गई। अंडे 10 रुपए इजाफे से 353 रुपए दर्जन हो गए। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। मटन के साथ ब्रायलर गोश्त की कीमत में भी तेजी देखी जा रही है। ब्रायलर 29 रुपए इजाफे से 482 रुपए फी किलो हो गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर जिंदा फार्म रेट 305, थोक 319, परचून 333 रुपए फी किलो है और अंडे 10 रुपए इजाफे से 353 रुपए फी दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 10,470 रुपए की हो गई है। दूसरी जानिब मटन की कीमत में भी मजीद 100 रुपए का इजाफा देखा गया, जिससे मटन 2600 से बढ़कर 2700 रुपए फी किलो हो गया। बरवक्त टैक्स दो इनाम पाओ। सबसे ज्यादा और बरवक्त टैक्स अदा करने वाले शहरियों और वसूल करने वाले अफसरान और एहलकारों को इनामात से नवाजा जाएगा। महकमा एक्साइज ने टैक्स दहिंदगान शहरियों और वसूल करने वाले अफसरान की हौसला अफजाई के लिए इनामात देने का फैसला किया है। जो शहरी सबसे ज्यादा और बरवक्त टैक्स अदा करेगा, इनाम का हकदार पाएगा। वसूल करने वाले अफसरान और एहलकारों को भी इनामात से नवाजा जाएगा। महकमा एक्साइज ने पंजाब भर में टैक्स दहिंदगान शहरियों और वसूल करने वाले अफसरान की हौसला अफजाई करने का फैसला कर लिया। हर रीजन से सबसे ज्यादा टैक्स वसूल करने वाले पहले 2 नंबर्स पर मौजूद ETOs और इंस्पेक्टर्स को इनामात से नवाजा जाएगा। DG एक्साइज की जानिब से तमाम रीजन्स को फहरिस्तें मुरतब करके DE ऑफिस भिजवाने का हुक्म दिया गया है। टैक्स दहिंदगान और वसूल करने वालों की हौसला अफजाई मकसद टैक्स कल्चर को फरोग देना है। अगले हफ्ते पुरवकार तकरीब में टैक्स दहिंदगान और मुलाजमीन को मदऊ किया जाएगा। असातिज़ा की जानिब से गैर कानूनी तौर पर अलाउंस लेने का इंकशाफ। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले असातिज़ा कई सालों से अलाउंस ले रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन से MPhil अलाउंस वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले असातिज़ा कई सालों से गैर कानूनी तौर पर 5000 रुपए माहाना अलाउंस लेते रहे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिस ले लिया। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले असातिज़ा अलाउंस के अहल नहीं। एजुकेशन अथॉरिटीज असातिज़ा से रिकवरी करके पैसे खजाने में जमा करवाएं। दूसरी जानिब पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन से MPhil अलाउंस वापस लेने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने MPhil अलाउंस फौरी रिकवर करने का हुक्म भी दे दिया है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को दिया गया MPhil अलाउंस कवायद के खिलाफ करार दिया गया। CEOs को तमाम केसेस की निशानदही और रिकवरेबल रकम जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। लाहौर में सोशो इकोनॉमिक सर्वे की ड्यूटी न करने वाले सैकड़ों असातिज़ा की जवाब तलबी कर ली गई। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने सैकड़ों असातिज़ा को गैर हाजिरी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। गैर निसाबी ड्यूटियों पर पाबंदी के बावजूद गैर हाजिर असातिज़ा की जवाब तलबी की गई है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि असातिज़ा बच्चों को पढ़ाएं या गैर निसाबी ड्यूटियां सर अंजाम दें। स्कूल सरबराहान ने मजीद कहा है कि मैट्रिक के पेपर्स में चंद माह बाकी हैं और असातिज़ा सर्वे ड्यूटियों पर तैनात हैं। चाइनास के मेन बुलेवार्ड ब्लॉक B1 के इलाका मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। नकारा स्ट्रीट लाइट, सीवरेज मसाइल और तबाहल सड़क ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, चाइना स्कीम के मेन बुलेवार्ड पर वाक़या B1 ब्लॉक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ के मकीन मुतलका इंतजामी अदारों की गफलत के बायस बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। इलाके में नस्ब जो तमाम स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कई माह से फ़नी खराबी का शिकार होकर बंद पड़ी हैं, जिससे जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब चुका है। साथ ही साथ नाकारा सीवरेज निज़ाम के बायस जो सीवरेज का गंदा पानी है वो भी सड़क पर मौजूद है और मुसलसल पानी जमा रहने के बायस सड़क टूट फूट कर तबाह हाल हो चुकी है। रात के अंधेरे में सीवरेज का जमा पानी और तबाह हाल सड़क जो है वो यहाँ के राहगीरों और इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन चुकी है। इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, ये मसाइल
जो आपको दरपेश है, इनके हल के लिए क्यों आप किसी से शिकायत वगैरह नहीं करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10-15 दिन हो गए हैं जी, ये सीवरेज बंद हुआ है, कंप्लेन भी की है, 1-2 दफ़ा गए हैं, वो कहते हैं हम आते हैं, आगे हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह ताला। अव्वल तो वो आए नहीं, अगर आए हैं वहाँ से लगाए हैं उन्होंने तो वो चले गए हैं, बस फिर वो वही हाल है। ये ठीक है, अभी कोई नहीं हुआ। लाइट स्ट्रीट लाइट इधर कोई भी नहीं है, कोई तवज्जो ही कोई नहीं है इधर। हम हादसा इधर होते हैं या कुत्ते वाला कुत्ते बहुत रात को जो पड़ते हैं, जो कोई आदमी आए वो कुत्ते वाला पड़ते हैं, उनको तो बड़ी परेशानी है। काइंडली प्लीज़ आप मेहरबानी करें, इस मसले का हल ये करें। इनको ये कुछ पूछते नहीं, करते कोई नहीं। इनको कंप्लेन भी की है 2-3 दफ़ा। बिल्कुल शिकायत के बावजूद इंतजामी अदारे जो हैं वो B1 ब्लॉक मेन बुलेवार्ड चाइना स्कीम के मकीनों के मसाइल हल करने में नाकाम है। इनका कहना है कि रात की तारीखी में इस तबाह हाल सड़क जहां पर सीवज का पानी भी जमा है, गुजरना जो है वो लोगों का मुहाल हो जाता है। लोग जो हैं वो आए रोज़ ज़ख्मी होते हैं, हादसात होना यहाँ पर मामूल बन चुका है। और जो इंतजामी अदारे हैं वो शिकायत पर कोई जो अमली इक़दाम है वो नहीं उठा रहे। आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर बुनियादी सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा इनकी जानिब से किया जा रहा है। जी जी रुबेल, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर आपको बताएं, शालीमार टाउन GT रोड पर मौजूद रेडी वालों का रश राहगीरों के लिए बाइस परेशानी, मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील होने लगा। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ GT रोड शालीमार टाउन के पास। अगर बात कर ली जाए इस सड़क की तो ये सड़क जो है मुकम्मल तौर पर बाजार बन चुकी है। रेडी वालों का रश जो है वो यहाँ पर लगा रहता है। इसके साथ साथ गाड़ियों की पार्किंग जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान कुछ सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर गया है। यहाँ पर पेरा फोर्स की जानिब से मुतादिद जो है ऑपरेशन किए गए, लेकिन ये बात इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पूरी तौर पर इस पर अमल दरामद करवाने में ना सिर्फ इंतज़ामिया जो है वो अब तक नाकाम नज़र आई है, बल्कि यहाँ पर ट्रैफिक का बढ़ता हुआ रश जो है वो ना सिर्फ अहले इलाका के लिए बाइस तशवीश बन चुका है, बल्कि तमाम तर जो राहगीर यहाँ से गुजरते वाले हैं वो भी बड़ी परेशानी में यहाँ से गुजरते हैं। और उनका कहना ये कि सड़क पे गाड़ियों का हजूम और तमाम रेडी वालों का रश जो है वो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, जिसके सबब यहाँ पर मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तब्दील हो जाते हैं। और यहाँ से गुजरते हुए गोया ऐसे लगता है कि किसी मेन बाजार से गुजरे, जबकि ये तकरीबन 80 फुट रोड से जायद जो है वो बड़ा सड़क है। और यहाँ पर इस सड़क पर जो है वो कई गाड़ियाँ जो है बेक वक्त गुजर सकती हैं, लेकिन अब आलम यह है कि चंद गाड़ियों के सिवा यहाँ पर सिर्फ जो है वो रेडी वालों का या तमाम तर कारोबारी जो मामलात जो ठेलेबान हैं उनका रश जो है वो नज़र आता है। जिसके साथ साथ यहाँ पर रश में ना सिर्फ दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, बल्कि ट्रैफिक जाम के मसाइल दरपेश हैं। यही वजह है कि तमाम तर राहगीरों का इंतज़ामिया से अपील करते हैं, ये कहना है कि खुदारा इस सड़क पर जो तमाम तर रेडी बान हैं उनको कोई मुतबादिल जगह फराहम की जाए, यहाँ पर कोई मॉडर्न रेडी बाज़ार कायम किया जाए, या यहाँ पर जो दीगर जगहों पर खसूसी तौर पर बाज़ार कायम किए गए हैं तमाम तजावुज़ात माफिया के लिए, उनके लिए कोई जो है वो जगह तजवीज़ की जाए, कोई जगह बनाई जाए, ताकि ना सिर्फ यहाँ से रेडी बानों का रश ख़त्म हो सके, बल्कि जो ट्रैफिक के मामलात हैं वो बाकायदा बासानी मामूल के मुताबिक जो है वो जारी रह सके। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। बादामी बाग ट्रक अड्डा पर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन की जानिब से इलामत एहतजाज किया गया। मिली रिक्शा यूनियन की जानिब से चालानों और बदअखलाकी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि लाहौर की ट्रैफिक पुलिस बगैर किसी वजह के चालान करती है। बादामी बाग ट्रक अड्डा पर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन की जानिब से इलामती एहतजाज किया गया। मरकजी सदर जावेद खान समेत दीगर शरीक हुए। हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर कहते हैं मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 2025 की वजह से हमारे ड्राइवर्स को 1 लाख का चालान किया जा रहा है। टूल टैक्स भी आए रोज बढ़ रहे हैं। हमारे मसाइल ये है कि पहले भी हमने अपने मसाइल बयान किए हैं हुकूमत वक्त को, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। हम मजबूर हो गए इस कदम को उठा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ऊपर चालान, जुर्माने और पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जिला पुलिस, एक जिले से दूसरे जिले पर अभी एक रोड पे 3-3 चालान, हम कहाँ पे जाएं? लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम मिली रिक्शा यूनियन की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के मुबैना नाजायज चालानों और बदअखलाकी के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवरों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि लाहौर की ट्रैफिक पुलिस बगैर किसी वजह के चालान करती है, बदजुबानी करती और नाजायज FIR देती है। शेख ज़ैद अस्पताल में बेज़ाब्तियां, वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अद्वियात, कैंटीन, इंजीनियरिंग ठेकों में बेज़ाब्तियों का जायजा लिया जाएगा। तकरियों, तबादलों, तरक्की और मुबैना जानिबदारी की तहकीकात होंगी। नर्सिंग एडमिशन्स में मुबैना गैर कानूनी अदायगियों की छानबीन होगी। वज़ीर आज़म ने शेख ज़ैद अस्पताल में बेज़ाब्तियों और बद इंतजामी की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने तफसीली इंक्वायरी
शुरू करते हुए वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज और हस्पताल इंतजामिया से 8 दिसंबर को ब्रीफिंग तलब कर ली है। मरासले के मुताबिक कमीशन अस्पताल में इंतजामी और माली इख्तियारात के इस्तेमाल, चेयरमैन और डीन के इख्तियारात की वापसी के पस मंजर का जायजा लेगी। कमीशन अस्पताल की माली मुश्किलात, वाजिबात के बढ़ने और इसके नतीजे में रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स और क्रिटिकल केयर जैसी अहम सहूलियात पर पड़ने वाले असरात का जायजा लेगा। इंसानी वसाइल के मामलात, तकर्रियों, पोस्टिंग्स, तरक्कियों, मुबैना जानिबदारी और गैर कानूनी फवाइद के इल्जामात भी तहकीकात में शामिल हैं। अद्वियात, कैंटीन और इंजीनियरिंग से मुतल्लिक ठेकों के मुमकिना बेज़ाब्तियों समेत 2021-22 के दौरान नर्सिंग एडमिशंस में मुबैना गैर कानूनी अदायगियों और हस्पताल वसाइल के जाती इस्तेमाल की शिकायत का भी मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी डॉक्टर एहसान भुट्टा शटल कॉक बन गए। डॉक्टर एहसान भुट्टा का 1 साल में 5 बार तबादला किया गया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से पहले मेंबर पीएनडी लगाया गया, फिर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 2 माह बाद सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल, फिर सेक्रेटरी सियाहत लगा दिया गया, फिर 1 माह बाद ही सेक्रेटरी औकाफ लगा दिया गया। हुकूमत पंजाब ने सेक्रेटरी डॉक्टर एहसान भुट्टा को शटल कॉक बना दिया। डॉक्टर एहसान भुट्टा का 1 साल में 5 बार तबादला किया गया। सीनियर ब्यूरोक्रेट और ग्रेड बेस के ऑफिसर डॉक्टर एहसान भुट्टा को सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से मेंबर पीएनडी बोर्ड लगाया गया था। कुछ ही माह बाद मेंबर पीएनडी बोर्ड से वापस सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज लगा दिया गया। 2 माह बाद सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल तैनात कर दिया गया। यहाँ भी ज्यादा अरसा न रहने दिया गया और ठीक 2 माह बाद ही सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल से सेक्रेटरी सियाहत लगा दिया गया। डॉक्टर एहसान भुट्टा को यहाँ आए अभी सिर्फ 1 माह ही हुआ था कि उन्हें सेक्रेटरी सियाहत से भी तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर एहसान भुट्टा को अब सेक्रेटरी औकाफ तैनात कर दिया गया। रमा हफ्ते ही सफरात अमान राना को सेक्रेटरी औकाफ लगाया गया था। उन्होंने महकमाना ब्रीफिंग भी ले ली थी और मुख्तलिफ दरबारों के दौरे भी कर लिए थे, लेकिन अचानक उन्हें तब्दील करके डॉक्टर एहसान भुट्टा को सेक्रेटरी औकाफ लगा दिया गया है। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार अमीर सिंह अरोड़ा का दी सल्यूशन आर्मी हेडक्वार्टर्स का दौरा। सूबाई वज़ीर ने क्रिसमस गाला के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। हेडक्वार्टर्स इंतजामिया ने इदारे के ऑपरेशन से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। क्रिसमस गाला में फूड, डेकोरेशन और दीगर अशिया का मुतअद्दिद स्टॉल्स लगाए गए। शुरका ने क्रिसमस का केक भी काटा। तकरीब में कर्नल मैकडोनल्ड चांदी, कर्नल डायना मैकडोनल्ड, डायरेक्टर FC कॉलेज जोनाथन एडल्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल सफ्तर इकबाल ने शिरकत की। मेजर खुरम शहजादा, मेजर सलीम यूसुफ, मेजर अरशद निज़ाम, मेजर माइकल पाल, मेजर समीना माइकल और आसिया सफ्तर समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। सरदार अमीर सिंह अरोड़ा ने कहा कि सरकारी सतह पर क्रिसमस सीजन का आगाज 14 दिसंबर से किया जा रहा है, जिसमें मुतअद्दिद तकरीबात मुनाकिद होंगी। एक मरकजी रैली निकाली जाएगी जो लिबर्टी पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। अब यहाँ पर आपको बताएं, फ़लस्तीनियों का मुआहदा सामने आया मगर इसराइल बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मॉडल टाउन में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मॉडल टाउन में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, फ़लस्तीन का मुआहदा सामने आया, हमें था फ़लस्तीन की तामीर नो होगी, अच्छा होगा, मगर इसराइल बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दुनिया की जिम्मेदारी है कि अमन मुआहदे पर अमल दरामद करवाए। अब ये जिम्मेदारी आलमी दुनिया की है, अमेरिका की है, बरतानिया की है कि वो आगे बढ़ें और उस मुआहदे को जो शर्म शेख में अमन मुआहदा हुआ है उस मुआहदे पे अमल दरामद करवाएं। यानी अगर इसराइल जो है वो उस मुआहदे को भी तस्लीम नहीं करता जिसका जो अमेरिका ने करवाया है और जिस पे पूरी दुनिया ने इत्तेफाक किया है, तो फिर आलमी दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो फलस्तीनियों को एक आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, हमने अफगानिस्तान की मदद की, इसे अपना भाई मानते हैं। तुर्किया, कतर और सऊदिया अरब ने भी कोशिश करके देख ली है। अफगानिस्तान से दरख्वास्त है कि आपकी सरजमीन से हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह अफगानिस्तान की मदद की है वो किसी से मख्फी नहीं है। हम अफगानिस्तान को अपना भाई समझते हैं, लेकिन अगर हमारा भाई किसी तरफ आने को तैयार नहीं है, तुर्की ने कोशिश करके देख ली है, कतर ने कोशिश करके देख ली है और आखिरी हफ्ते में सऊदी अरब ने भी कोशिश करके देख ली, और हमारा मुतालबा बड़ा सादा सा है, कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जो समझ ना आए। हम ये कह रहे हैं कि आपकी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने कहा कि पाकिस्तान को मई में बड़ी कामयाबी मिली है। दुनिया पाकिस्तान फौज को एजाज दे रही है। कुछ दिन में सऊदी अरब भी एक एजाज का ऐलान करेगा। फौज के खिलाफ 70% प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान से हो रहा है।
दुनिया इस्लाम के अहम तरीन ममालिक अपने जो आला तरीन एजाजात है उससे पाकिस्तान की फौज को नवाज रहे हैं और सिपा सलार को दे रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि अगले 2-3 हफ्तों के अंदर जो हमारी अकीदतों का मरकज है मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा, वहां से भी पाकिस्तान के सिपा सलार के लिए एक अहम ऐलान हो रहा है। जो इस वक्त हमारे ऊपर अफगानिस्तान के रास्ते से जो जंग मुसल्लत की जा रही है, इसमें सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें इस्लाम दुश्मन कुव्वतें भी हैं। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, हजारों वाकयात ऐसे मिले जो शर्मिंदगी का बाइस है। अब पाकिस्तान से सिर्फ वो लेबर जाएगी जो स्किल्ड लेबर होगी। कैमरामैन अहमर अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में 30 इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। पंजाबी जुबान की तरक्की और तरवीज के लिए मुख्तलिफ सेशंस हुए। लैंग्वेज एंड आर्ट एंड कल्चर में इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस में पंजाबी जुबान के हवाले से मुख्तलिफ सेशन हुए। पहले सेशन में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, मेंबर सूबाई असम्बली नदीम अजब चैन और नामवर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइश ने शिरकत की और पंजाबी जुबान के हवाले से पंजाबी में बातचीत की। बुल्ले शाह ते साडे भाई चौधरी मंजूर अहमद साहब बड़ी उन्होंने तहरीक है सिलसिले और मैनू गो असी सियासी तौर पर मुखालिफ जमातों खड़े हाँ, लेकिन मैनू उन्होंने बहुत एहतराम है और मेरे जिले तो नहीं, और उन्होंने बुल्ले शाह से बहुत कम किया है, पंजाबी भी बहुत कम किया है। उन्होंने एक बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि उत्थे एक बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी भी होवे, और मैं उन्होंने कहा कि बेशक उधर चार्टर तुहानू मैं बना के भेज दियाँ, फंड्स उहदे तुहानू मैं भेज दियाँ, लेकिन उहदी ओनरशिप चौधरी मंजूर अहमद नाल जुड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। नदीम अफजल चंद ने कहा कि हमें पंजाबी जुबान को अपनी तालीम में शामिल करना चाहिए। पहले तो असी अपना रवाज बचाइए, अपनी रस्म बचाइए, अपनी जबान बचाइए, असा वो भी नहीं बचाई। असी आज पंजाबी कंपलैक्स का नाम हो गया पूरी दुनिया। अबड़ैल साहब कैनेडा जाते रहते, यकीन करो मैं कैनेडा जाके पंजाबी ना प्यार हूं। पंजाबी जुबान के फलसफा पर भी सेशन हुआ जिसमें डॉक्टर कल्याण सिंह कल्याण ने निजामत की। डॉक्टर सुगरा सदफ ने पंजाबी जुबान के प्रचार और फलसफे पर बात की। तीसरी बैनुल-अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस में जहां पंजाब भर से नामवर शख्सियात ने शिरकत की, वहीं कॉन्फ्रेंस में पंजाब की सकाफत का रंग भी नजर आया। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ ज़ैनुद्दीन हुसैनी, सिटी 42। जेलानी पार्क में हरसू रंगों की बहार आ गई। गुल दाऊदे की सालाना नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद ने भरपूर एंजॉय किया। स्नोफॉल ने नुमाइश को 4 चांद लगा दिए। लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों और खुशबुओं की बहार आ गई। सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश सज गई। नुमाइश में 200 अक़साम के 15,000 गुले दाऊदी और 15,000 मैरीगोल्ड फूल सजाए गए हैं। गुलाबी, पीले, नारंगी, सफेद और मुख्तलिफ अक़साम के फूल शहरियों पर सहर तारी करने लगे। फूलों से मुख्तलिफ अक़साम के मॉडल्स भी बनाए गए हैं। बग्घी, पाकिस्तानी परचम, दिल, मोर के मॉडल्स मरकज़े निगाह बन गए। शहरियों ने नुमाइश के इनाकात को सराहते हुए कहा, फूलों से मुनव्वर पार्क अच्छा एहसास दिला रहा है। बहुत अच्छे लगे, डिफरेंट फ्लावर देखने को मिले हैं और वो फ्लावर भी देखे हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं होते। मैं कराची से आई हूँ, बहुत अच्छा ये हमारे लिए एक चांस था कि हम डिफरेंट फ्लावर कैटेगरीज को देखें और पंजाब गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। शहरियों का कहना है कि स्नोफॉल के मंजर ने दिल जीत लिए। स्नोफॉल बच्चों के लिए बहुत अच्छा फेस्ट मोमेंट था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और ये बच्चों के लिए, बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों की जो है ना काफ़ी इंजॉयमेंट है। बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है हमें एंजॉय करने में। हम सबसे अच्छा जो इधर लगा ये इन लोगों ने स्नोफॉल जो किया है, बहुत अच्छा, आई लाइक इट। आई एंजॉयड अ लॉट एक्चुअली, एंड एक्चुअली मैंने देखा about the castle of the snowfall castle was actually really great. नुमाइश में शहरियों के लिए मुख्तलिफ सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। कैमरामैन मोहसिन राजपूत के हमरा अदियाना, सिटी 42। 3 तैराक भाई जो मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरज़्म हैं। दयान काशिफ, मोहतशिम और आबान काशिफ 9 उम्री में ही स्विमिंग के खेल में कामयाबियों के झंडे गा रहे हैं। तीनों भाई मुस्तकबिल में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कोशा हैं। जवान तैराक दायान काशिफ दूसरी बार नेशनल गेम्स में पंजाब की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं। इस बार दायान कांसी की बजाय सोने का तमगा जीतने का टारगेट रखते हैं। 15 साला दायान के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके छोटे भाई 13 साला मोहतशिम काशिफ और 10 साला आबान काशिफ भी तैराकी के खेल में ओलंपिक में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। मेरा एम है कि मैं स्विमिंग आगे करता रहूं और मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करूं और पाकिस्तान के लिए कोई मेडल लाऊं। मेरा शौक है आगे जाने का और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और मेडल जीतूं।
اور میں اس والی نیشنلز جو ہوئی ہے جونیئر نیشنلز اس میں 5 گولڈ میڈلز جیت کر بیسٹ سوئمر بنا. میں 7 سال کی عمر سے سوئمنگ کر رہا ہوں. میرا شوق تھا اس لیے میں نے شروع کی تھی. اسی شوق کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں آج 8 سال ہو گئے مجھے سوئمنگ کرتے ہوئے. آگے کا ایم ویسے تو پڑھائی مین فوکس ہے لیکن سوئمنگ ساتھ ساتھ ایک میرے شوق ہے جس کو میں پرسو کرتا جا رہا ہوں. تو آگے ایم تو یہی ہے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اولمپکس میں. تینوں بچوں کے والدین طب کے شعبے سے وابستہ ہیں. بچوں کی والدہ ڈاکٹر عظما کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر ڈاکٹر کاشف اور وہ مل کر بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ کا بھی بھرپور خیال رکھتے ہیں. ہم ان پیرنٹس میں سے ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی پڑھائی ایکولی آپ نے لے کے چلنی ہے اور سپورٹس آپ اچھا کریں. ٹائم مینجمنٹ ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہوتی ہے, اس میں بچوں کو ڈسپلن کرنا اور اسپیشلی اس چھوٹی ایج سے ان کو ڈسپلن کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے. بٹ یہ کہ اگر بچے کا شوق ہو تو میرا خیال ہے وہ خود اس چیز میں مینج کر لیتا ہے اپنی چیزوں کو. حالیہ نیشنل ایج گروپ چیمپئن میں پنجاب نے 14 میڈلز جیتے تھے جن میں سے 11 میڈلز تینوں بھائیوں نے جیتنے کا اعزاز حاصل کیا. 10 سالہ آبان کاشف نے 5 گولڈ میڈلز جیتے. 15 سالہ دایان کاشف نے گزشتہ 7 سال کے دوران 7 ریکارڈز بنائے جو اب تک کوئی نہیں توڑ سکا. کیمرہ مین احسن جاوید کے ہمراہ رانا آذر نور, سٹی 42. مین مارکیٹ گلبرگ میں واقع اوشین آرٹ گیلری میں میرا نظر نہ آنے والا لاہور کے عنوان سے آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا. نمائش میں معروف آرٹسٹ ثاقب اختر کے فن پارے پیش کیے گئے. اوشین آرٹ گیلری میں لگائی گئی میرا نظر نہ آنے والا لاہور نمائش کا افتتاح معروف آرٹسٹ ڈاکٹر اعجاز انور نے کیا. معروف کارٹونسٹ جاوید اقبال, شائمہ عمر, محمد شریف, طارق, صلاح الدین میچو, سائرہ طارق, جمیل حسین, شمیم منصور, منیبہ فیاض اور خالد محمود سمیت دیگر فنکاروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکاء نے آرٹسٹ ثاقب اختر کے تخلیقی کام کو خوب سراہا. رائٹر, شاعر, موسیقار, پرفارمنگ آرٹسٹ, ویژول آرٹسٹ, ساروں کو آوارہ گرد ہونا ضروری ہے. یہ بھی لگتا ہے ہر جگہ پھرتا رہتا ہے اور یہی اچیومنٹ ہے. یہ ایک پینٹنگ ایک ریمائنڈر دیا گیا ہے کہ یہ جو آپ کے لاہور کے جو لاسٹ ہیریٹیج ہے اس کو ہم تھوڑا سا ریوائیو کریں پینٹنگز کے تھرو. بہت اچھا کام کیا ہے آرٹسٹ نے, اٹس بیوٹیفل. آرٹسٹ ثاقب اختر نے کہا کہ میرے بچپن کا لاہور تجاوزات اور مسائل کی نظر ہو چکا ہے. فن پاروں میں کوشش کی ہے کہ وہ لاہور دکھاؤں جو اب نظر نہیں آتا. بلڈنگ میری ایسی ہیں, کچھ کافی بلڈنگ امپورٹنٹ والی جو ہیں تو سارے کامن ہے, لیکن موسٹلی اب دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری کسی کو پتہ نہیں, نسبت روڈ پہ ہر کوئی جاتا ہے, کیمرہ مارکیٹ میں ہر کوئی جاتا ہے. دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری کے آگے کوڑے دان پڑے ہوئے ہیں یار, اندازہ کرو یار. فن سے محبت رکھنے والوں نے ثاقب اختر کی کاوش کو خراج تحسین پیش کیا. شرکاء نے کہا کہ فن پاروں نے پرانے لاہور اور بچپن کی یادوں کو تازہ کر دیا. رومیلی لیاس, سٹی 42. شالامار انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے چوتھے انٹیگریٹڈ کنووکیشن کا انعقاد. کنووکیشن میں 299 طلباء و طالبات کو اسناد سے نوازا گیا. تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں گولڈ اور سلور میڈلز تقسیم کیے گئے. کنووکیشن کی صدارت پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نادیہ نسیم نے کی. پروفیسر راشد لطیف خان, چیئرمین شاہد حسین, پرنسپل شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج پروفیسر زاہد بشیر, چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عائشہ, پرنسپل شالامار اسکول آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر رفعت جاوید, پرنسپل شالامار نرسنگ کالج ڈاکٹر نسیم رفیق سمیت فیکلٹی ممبران, طلباء اور والدین نے شرکت کی. مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف نے کہا کہ آج آپ پریکٹیکل لائف میں داخل ہو رہے ہیں اور بطور ڈاکٹر آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے تاکہ آپ طب کے شعبے میں بہتر خدمات سر انجام دے سکیں. کیونکہ آپ سب ہیلتھ کیئر بن رہے ہو, ہیلتھ پرووائڈر بن رہے ہو, چاہے آپ نرس ہو, چاہے پیرامیڈیکل ہو, چاہے ڈاکٹر ہو یا اسپیشلسٹ, جو بھی بنیں گے آپ سب نے مل کے ایک ٹیم بن کے کام کرنا ہے. ڈاکٹر اکیلا کچھ نہیں, نرس اکیلی کچھ نہیں. اسی طرح تو اب آپ سب ایک ٹیم بنیں گے تو پراپر ہیلتھ کیئر پرووائڈ ہوگی اور مریض بہتر ہوں گے, ان کا علاج بہتر ہوگا. چیئرمین شاہد حسین نے ادارے کے آئندہ کے پروگرامز کے حوالے سے گفتگو کی اور کامیاب طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد دی. We will continue our efforts to provide opportunities for our students and faculty to train in the technological areas, whether they are AI or digital learning. I see some faculty members from LUMS here. I'm very grateful to the LUMS faculty and team for supporting our efforts and helping our graduates learn new skills.
طلباء نے ڈگری ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ آج میں بہت خوش ہوں، آج مجھے ڈگری ملی ہے اور 3 میڈلز ملے ہیں، 2 گولڈ اور 1 سلور ہے، اور میں یہ اپنی کامیابی اپنے پیرنٹس کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں۔ ہم بہت خوش ہیں اور اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ کرام کا بہت شکر گزار ہیں۔ آج بڑا اچھا لگا، انہوں نے اچھا سا ارینج کیا ہے۔ نرسنگ، MBBS، DPT اور امیجنگ اسٹوڈنٹس ساروں کو 1 by 1 کر کے بلایا، سب کو ایک انٹیگریٹڈ کنووکیشن ہوئی تھی۔ ڈگریاں ملنے پر طلباء کے والدین بھی خوش نظر آئے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ ایکسپو سینٹر میں جاری آئیپیکس بلڈنگ مٹیریل ایگزیبیشن اور کانفرنس دوسرے روز بھی بھرپور توجہ کا مرکز بنی رہی۔ آرکیٹیکٹس ورلڈ کے زیر اہتمام سجائی گئی اس نمائش میں جدید بلڈنگ مٹیریل، ڈیزائن اور سسٹینیبل ٹیکنالوجیز نے لوگوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال نے سٹالز کا دورہ کیا۔ ایکسپو سینٹر میں رنگ، ڈیزائن، مٹیریل اور جدید تعمیرات کا امتزاج۔ آئیپیکس ایگزیبیشن کا دوسرا روز بھی گہما گہمی سے بھرپور رہا۔ وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال نے نمائش کا افتتاح کیا اور مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا، پاکستان نے بہت سیاسی لانگ مارچ دیکھ لی، اب وقت ہے معیشت مارچ کا۔ ہر شعبے کو اپنی کمپیٹیبلٹی بڑھانی ہوگی تاکہ دنیا کی منڈیوں میں پاکستانی جھنڈے گاڑے جا سکیں۔ پاکستان کے پاس ایک بڑا زرخیز ورثہ ہے، ہماری تہذیب کا بہت زرخیز ورثہ ہے۔ اپنے تاریخی ورثے کو بھی اور اپنی ہیریٹیج اور کلچر کو بھی اسی طرح ترقی دیں تاکہ اس کے ذریعے ہماری دنیا میں شناخت واضح ہو سکے۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک کی کمپنیوں نے سٹالز لگائے، جہاں جدید بلڈنگ مٹیریل، گرین آرکیٹیکچر، انٹیریئر ڈیزائن کی نمائش کی گئی۔ اسٹال اونرز کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہاں جدید بلڈنگ سولوشنز متعارف کرائے ہیں۔ گاہکوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے۔ ایسی نمائشیں کاروبار اور صنعت دونوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ اچھا انیشیٹو ہے یہ آرکیٹیکٹ ورلڈ اور آئیپیکس والوں نے، آرکیٹیکٹس جو ہیں انہوں نے یہ ایگزیبیشن جو ہے وہ کروائی ہے اور بڑا اچھا فٹ فال ہے یہاں پہ، کولیبوریٹ کرنے کا ہمیں اچھا موقع ملا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو کمپنیز ہیں ان کو بھی گرو کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اور ہم بھی اس طرح پچھلے سال اپنے برانڈ کو یہاں پہ لے کر آئے تھے جس میں ہمیں انوویشن جو ہے وہ ایوارڈ ملا تھا۔ نمائش میں انٹیریئر ڈیزائنر انڈسٹری کی 3D ماڈلز، کلر سکیمز اور گرین کنسٹرکشن مٹیریل طلبہ اور ماہرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ افشان رضوان، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔